Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for the chapter of analysis and interpretation of financial statements. अभी जैसे इसका नाम है लंबा चौड़ा, वैसे ये चैप्टर भी बहुत लंबा चौड़ा है. ओके, बिकॉज इट इज़ द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे कह सकते हो. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू फर्स्ट लर्न? फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है. वेल, आपका ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, और कुछ जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. टुडे let me at least introduce to you the concept of vertical format. Very important. Analysis आप कब करते हो? देखो, इंटरप्रिटेशन बाद में होने वाला है, अभी नहीं. इंटरप्रिटेशन नंतर. एनालिसिस के लिए फर्स्टली यू हैव टू बी गुड एंड एक्सीलेंट, बिकॉज द फर्स्ट वर्ड इज एनालिसिस. जब तक एनालाइज ही सही नहीं करोगे तो किस बात का इंटरप्रेट करोगे? इंटरप्रिटेशन में भी गड़बड़ हो गया. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, when somebody is speaking and you are supposed to analyze and interpret and talk in a local language, जो बात कर रहा है आपके पल्ले वही पड़ा नहीं. फिर उसने हाय हेलो हाउ डू यू बोला और तुमने व्हाट्सएप चालू अपना कर दिया, ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि बैलेंस शीट को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिंता नॉट, बाद में. टुडे बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट को हम लोग वर्टिकल कैसे करते हैं. ना होल्ड ऑन, फर्स्टली यू विल अंडरस्टैंड सर ये वर्टिकल का चक्कर क्या है. माय डियर, ये बैलेंस शीट है जो आपने पिछले सालों से सीखा है. लेफ्ट राइट, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. लेफ्ट राइट, ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. जब वो ऐसे बन जाता है बिल्डिंग तो वो होता है वर्टिकल. ओके, हाँ. सो दिस बैलेंस शीट विच यू हैव लर्नड, इसके अंदर नॉर्मल कैपिटल, लोन, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और बाकी की चीज़ें, बट ये दाएं बाएं है, लेफ्ट राइट. आपको इसको कन्वर्ट करके ये वाले पोजीशन से ऐसा कर देना है, वर्टिकल. सो हाउ डज अ वर्टिकल बैलेंस शीट लुक? उसमें क्या होता है? वेल, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, ये दिखता है ऐसे, उसमें कुछ नया नहीं होता. अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, कुछ नया नहीं होता. वही डेटर, वही क्रेडिटर, द सेम डेटर, द सेम क्रेडिटर, द सेम स्टॉक, द सेम कैपिटल, द सेम रिजर्व्स, द सेम
बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश, बैंक, सेम सेम सेम। तो फर्क क्या है? अगर सेम ही है तो लुक में फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज हॉरिजॉन्टल। नाउ यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड एंड राइट दिस एज वर्टिकल। मैनी में क्वेश्चन, अरे बट सर सेम तो लिख रहे हो तो वर्टिकल क्यों करना है? क्योंकि वर्टिकल में ना कैटेगरीज होते हैं। एक मिनट, कैटेगरी मतलब देख ले मेरे पीछे, ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये क्या है? इट्स अ कैटेगरी। अच्छा, मतलब नॉर्मल बैलेंस शीट में ओनर का पैसा, ओनर का पिगी बैंक में कितना पैसा पड़ा है, नॉर्मल बैलेंस शीट में नहीं पता चलता, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में पता चलेगा। ओके, इनफैक्ट उसके अंदर शेयर कैपिटल, थोड़ा आगे रिजर्व एंड सरप्लस, आपको पता चलेगा शेयर कैपिटल में कितना पैसा है, रिजर्व में कितना पैसा है। यू विल कम टू नो द कंपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। ओके, सो आई रिपीट, देयर इज द सेम बैलेंस शीट, द सेम आइटम्स, बट उनका ग्रुपिंग किया गया है। तू ये टीम में जा, तू वो टीम में जा, तू ये टीम में जा, समथिंग लाइक दिस। हाँ, देन देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड एज बोरोड फंड्स, मतलब आपने दूसरों से, बाहर वालों से कहाँ पे पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है। ओके, सो जैसे होता है लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी इज अ डिफरेंट साइड, एसेट इज अ डिफरेंट साइड इन अ वर्टिकल टॉप डाउन। प्लीज नोट, हाँ, ये ऊपर से शुरू होता है, इट गोज डाउन एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज। ये मेरे ऊपर जो है ना वो नेक्स्ट पेज है। इट कंटिन्यूज फ्रॉम अप एंड इट कम्स एंड फिनिशेस हियर जस्ट अबाउ मी। तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, लेफ्ट राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यूअस है। पहले पेज 1 पे खत्म, फिर ये पेज 2 है मेरे ऊपर। हाँ, सो द टू पार्ट्स ऑफ अ वर्टिकल बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल में एसेट लाइबिलिटी, बट इन अ वर्टिकल बैलेंस शीट क्या नाम है उनका? सोर्सेज ऑफ फंड्स। ऊपर देखो, दूर मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, और नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ऊपर देखो पार्ट 1 सोर्सेज ऑफ फंड्स, नीचे देखो पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो यू मस्ट हैव टू आंसर्स व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ अ वर्टिकल बैलेंस शीट। खत्म हो गया ना? 2 आंसर होने चाहिए आपके पास। एक, इस सोर्सेज का तेरा क्या आंसर आया? 2, एप्लीकेशन का तेरा क्या आंसर आया? और अगर आप बोलोगे ये मेरा तो सोर्सेज 10 लाख आया और एप्लीकेशन 11 लाख आया, कितनी अच्छी बात है। नहीं भैया, गूगली, क्या गड़बड़ हो गया? कैसे? बिकॉज जस्ट लाइक लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, सोर्सेस शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सोर्सेस का मतलब क्या है? सोर्सेस, पानी का सोर्स क्या है? कहां से ये नदी बहती है? गंगा कहां से बहती है? सोर्स। कंपनी में पैसा कहां से आता है? ओके, तो उसका मतलब है सोर्स। सोर्स में अगर आपके पास 10 लाख है, मतलब आपके पास 10 लाख रुपया आया, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल, यूज। 10 लाख आया तो 10 लाख यूज किया होगा ना, वेरी ट्रू। 11 लाख कैसे यूज किया? ये 1 लाख कौन से हवे में से टपक गया? ओके, इट कांट बी पॉसिबल। सोर्सेस का टोटल एंड एप्लीकेशन का टोटल मस्ट मैच। इफ इट मैचेस तो पार्टी टाइम। क्यों? करेक्ट आया आपका आंसर। सो सिंपल एज दैट। ओके, नाउ आपको विभाजन अंडरस्टैंड करना है। यू सी, सरकार एक होती है, उसमें मिनिस्ट्रीज कितने होते हैं? ओके, आईटी की मिनिस्ट्री, रेलवे की मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, फलाना ढिमकाना, देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ओके, सच अ लॉट। हाँ, आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि भाई मैं कौन से मिनिस्ट्री में हूं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ऊपर ऊपर से माइक्रोस्कोपिक डिटेल नहीं बता रहा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ताकि यू अंडरस्टैंड कि बाबा सर नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू क्या करने वाले हैं। सो हियर गोस, व्हेन यू आर डीलिंग विद सोर्सेज ऑफ फंड्स, आपको मतलब कौन से बटुओं से, पर्सेस हमको पैसा आया है। देखो, पहला ना ये ए है, ओनर से पैसा आएगा। उसके बाद में है बी, बोरोड, बाहर वालों से। अच्छा, तो ओनर का पैसा लिया, बाहर वाले का पैसा लिया, ऐड किया, क्या आया? टोटल आया। ओके, अच्छी बात है। अभी खर्चा किधर किया?
अच्छा, तो एप्लीकेशन में ना 3 ऑप्शन है, 3। 1 फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया, ओके चलो खर्चा किया। नेक्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया, ओके। 3 वर्किंग कैपिटल, 3 ही। सो जो आपका टोटल आया सोर्सेस का 1 + 2, द सेम शुड बी द टोटल ऑफ एप्लीकेशन 1 + 2 + 3। खर्चा करने का रीजन थोड़ा ज्यादा है, बट अमाउंट उतना ही होगा। यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट कैटेगरी। सो आई रिपीट माई सेल्फ, whenever you prepare a balance sheet which is in vertical form, you will prepare a sources side. In that you will get owners funds, borrowed funds. You will prepare an application side, and in the application side you will have fixed asset, investment का मतलब दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स आपने खरीदे, आपने गवर्नमेंट में कुछ खरीदा है, और लास्ट का वर्किंग कैपिटल। Yes, many of you will be like, सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये तो हमने आज तक सुना नहीं। डोंट वरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि सोर्सेज में 2 बहाने हैं, एप्लीकेशन में 3 बहाने। टोटल इसका और टोटल इसका शुड बी द सेम, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, अगल बगल, लेफ्ट राइट, आपको उसको कन्वर्ट करना है ऐसे। तो मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि बाबा स्टीवन सर बोल क्या रहे, कि मेरा पहला काम क्या है। टू डू एनालिसिस यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ डू आई मेक अ बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। डू नॉट इन योर माइंड राइट नाउ वरी, सर व्हाट अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका टाइम बाद में आएगा, तब चिंता करेगी। Right now we are only worrying about assets and liabilities. Okay, let me put this in a different perspective. In a business सबसे पहले आता क्या है, liability। दूसरा क्या आता है, assets। Many of you would be, अरे नहीं सर how is that possible, बट पहले तो फर्नीचर आता है, पहले मशीन आता है, पहले माल आता है, तो वो तो एसेट होता है। तो लाइबिलिटी किससे पहले आता है, फर्नीचर पहले नहीं आता, मशीन पहले नहीं आता, बिल्डिंग पहले नहीं आता, मोटर कार पहले नहीं आता, पहले आता है पैसा। उसका पैसा किधर से आता है, मालिक से आता है, वो कैपिटल होता है ना। पहले आता है कैपिटल, लाइबिलिटी। बाद में यू डिसाइड कि ये जो पैसा आया है इससे हम लोग क्या शॉपिंग करेंगे। तो प्लीज नोट, पहले आता कैपिटल है। अगर वो पैसा कम गिर गया तो आप लोन लेते हो, तो भी आप पैसे का तो बंदोबस्त कर रहे हो, फिर आप बोलते हो चल हम लोग गाड़ी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे। इन अ वर्टिकल बैलेंस शीट व्हाट आई हैव शोन यू अबव इज अ हॉरिजॉन्टल। इन अ वर्टिकल बैलेंस शीट इसका नाम बदला जाता है, एंड द लाइबिलिटीज इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ फंड्स। पैसा कुठून कुठून आला, एंड द assets are called as application of funds. So when you prepare a vertical balance sheet, you will have a category जिसका नाम होगा sources, उसका एक टोटल आएगा। You will have a category जिसका नाम होगा application, उसका एक टोटल आएगा, और दोनों टोटल सेम होना चाहिए। 1 रुपए का फर्क नहीं आ सकता है। अगर आया या तो क्वेश्चन गलत है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, या तो हमारे हिसाब में मिस्टेक है। राइट नाउ लेट मी टेक यू लिटिल बिट डिटेल कि सर सोर्सेज में आता क्या क्या है। आपने बोला 2, शेयर होल्डर का पैसा, ओनर, और बोरोड पैसा। हाँ, बट शेयर होल्डर में डिटेल्स है, बोरोड में डिटेल्स है। एप्लीकेशन में तो 3 है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है सर, हमको तो वही नहीं पता। चिल, टेंशन नॉट, वो मेरा काम है। अगले 3 सीन में मैं आपको वही समझाऊंगा। अगेन डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में तो हमको हर सम में करना ही है। ओके, तो थोड़े ऊपर ऊपर से ये सोर्सेज में क्या आता है, देखो पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन लॉन्ग टर्म लोन मतलब बोरोड फंड्स। ओके, शेयर होल्डर्स फंड्स में कहानी बहुत लंबी है, एकदम लंबी। ओके, मतलब खत्म ही नहीं होती, ससुराल सिमर का चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ओके, तो भाई हमारे
ससुराल सिमर का में क्या क्या है? देखो, पहले है शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड्स में होता है मालिक का पैसा, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। यू विल गेट इक्विटी शेयर कैपिटल। सो व्हेन यू गेट इन अ प्रॉब्लम इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट मार्किंग डू यू डू? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा, देन नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एनी कैपिटल, वेदर इट इज इक्विटी और वेदर इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ यू गेट कॉल इन अरियर तो वो लेस होगा। ये थोड़ा डिटेल में है, क्यों लेस होगा? अरे कॉल इन अरियर का मतलब पैसा दिया ही नहीं शेयर होल्डर ने, तो फिर पैसा नहीं आया ना, तो माइनस। और शेयर फॉरफिटेड आया तो ऐड करना। क्यों रे, ऐड क्यों करना? क्योंकि ना कुछ लोगों का शेयर छीना जाता है। अरे छीन लिया, हाँ उसने पैसा ही नहीं दिया, उसने बोला 10 रुपया देने वाला है, दिया 4 रुपया, बाकी का 6 रुपये के लिए भाग गया, हमने 4 रुपया छीन लिया। दैट इज कॉल्ड अ शेयर फॉरफीचर। सो वेरी सिंपल, द फर्स्ट कैटेगरी इज शेयर कैपिटल इन शेयर होल्डर्स फंड्स। द सेकेंड कैटेगरी इज रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? जब पैसा बचाया जाता है कंपनी में, उड़ाया नहीं जाता, बचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में बचाया, घर पे एक नमक के लिए रिजर्व है, एक क्या है डब्बा है ना, चाय पत्ती के लिए एक डब्बा है, ओके, फिर हल्दी के लिए, धनिया पाउडर के लिए, सब के लिए डब्बे डब्बे डब्बे, वो क्या है? रिजर्व, बचा कर रखा है, बचा कर। फ्रिज में तो बहुत सारा माल हम लोग बचा कर रखते हैं, तो ये सब रिजर्व होता है। तो कंपनी भी ऐसे करती है। कहाँ पे पैसा बचाया? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो बेसिकली जितने रिजर्व होते हैं ना, आगे आप पढ़ सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट्स ऑल्सो अ रिजर्व, ओके, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड्स, FUNDS, funds and reserves will always be marked as reserve and surplus. Okay, obviously when I show you the problem in my next lecture तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। ओके, तो पहले आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व, उसको ऐड करेगी, फिर आएगा ये फिक्टिशियस एसेट, इसको कहते हैं झूठा एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, झूठा एसेट। झूठा एसेट तो एसेट ही कैसे हो गया वो? हाँ तो बराबर है ना, उसको झूठा बोला है, वो बहरूपी है। एसेट साइड पे है पर एसेट नहीं है, ऐसा कैसा एसेट होता है? एसेट साइड पे पर एसेट नहीं है। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक्चुअली कंपनी एसेट साइड पे लिखती है। खर्चा, रीड दैट वर्ड, एक्सपेंसेस। अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, हाँ तो वो भी तो एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये एक लॉस है। इशू एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देयर आर मेनी एक्सपेंसेस जो जब कंपनी करती है तो वो बहुत बड़ा होता है, 100 करोड़ 200 करोड़। कंपनी को थोड़ा झटका लगता है अगर वो इतना बड़ा खर्चा P&L में लिखे, तो व्हाट डू कंपनीज डू? उन लोग क्या प्लान करते हैं? वो उस खर्चे को, जैसे यहाँ पे देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू कैन सी द कर्सर इज पॉइंटिंग एट दैट। वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन को बनवाने में लॉट ऑफ रिसर्च वाज डन। फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, सो मेनी कंपनीज। द फर्स्ट रिसर्च, क्या वो सफल हो गया होगा? नो। सेकेंड, थर्ड, नहीं, टाइम जाता है। तो जो पैसा उसमें डाला बर्बाद। एक्चुअली हाँ, इतना पैसा डाला बर्बाद हो गया। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हर टाइम थोड़ी किस्मत चमकती है। तो ये कहाँ पे लिखने का? एक काम करो, बैलेंस शीट में लिखो। कौन सी कैटेगरी? फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट। तो सबको पता है कि झूठा एसेट है, बट इतना है कि भाई कंपनी को वो उतना बड़ा जो नुकसान हुआ है वो उनको P&L में इकट्ठे दिखाना नहीं, टुगेदर। ओके, वो बेसिकली उसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो ऑन द एसेट साइड, इफ यू सी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ये सब है फिक्टिशियस एसेट, इसको कहते हैं
miscellaneous expenses. See, a word is there, miscellaneous expenditure. So again, I will give this in detail next time also when I meet you. I'm just introducing today कि shareholders funds में what do I get? I get share capital, I get reserves and surplus, and I get fictitious asset. चलो वो हो गया. Very important. Share capital में reserve and surplus is plus, fictitious asset is minus. Okay. Above, loans, borrowed fund. इसमें क्या आता है? अरे सिंपल, सारे कर्जे आते हैं. बैंक लोन, डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ऊपर डिबेंचर्स, ये सब क्या है? ये सब लोन है जो कंपनी ने बाहर वालों से लिया. तो व्हेन यू गेट डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, सिंपल राइट इट इन द कैटेगरी कॉल्ड एज बोरोड फंड. यू विल हैव वन आंसर फॉर sources, sorry, you will have one answer for shareholders funds and another answer for borrowed fund. जोड़ लो, you will get the total answer for sources. Okay, this is one part of a balance sheet, vertical. Then it continues and you go to application. Application मतलब खर्चा किया. किधर खर्चा किया? फिक्स्ड एसेट. कौन सा फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट मतलब वो एसेट जो आपके साथ रहेगा सालों साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, सालों साल. ओके, कौन सा एसेट? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. दीज आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल. इसको आप टच नहीं कर सकते. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट. आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, इनको कहते हैं टेंजिबल एसेट. टच कर सकते हो, बट ये है दोनों फिक्स्ड एसेट का कैटेगरी. सो व्हेन ऑन द एसेट साइड यू गेट दीज एसेट्स, आपका मार्किंग क्या होगा? फिक्स्ड एसेट, ये वाला टेंजिबल है. फिक्स्ड एसेट, ये वाला इंटेंजिबल है. ओके, सो दे विल गो टू द कैटेगरी कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट. देन अगर कुछ डेप्रीसिएशन होगा तो नीचे देखो लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो वो डेप्रीसिएशन आप माइनस कर लो, लाइक यू डू इन एवरी बैलेंस शीट, सबट्रैक्ट. अच्छा, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया दूसरी कंपनी या बैंक में या गवर्नमेंट में. ओके, अच्छा, तो आपने गवर्नमेंट बॉन्ड, आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो पैसा तो डालना पड़ेगा ना. सिंपल, वो डालने का कैटेगरी इन्वेस्टमेंट में. ओके, एक कैटेगरी फिक्स्ड एसेट, दूसरा कैटेगरी इन्वेस्टमेंट. देन कंटिन्यू. तीसरा कैटेगरी क्या है? वर्किंग कैपिटल. ऊपर देखो, एंड इट इज वन ऑफ द मोर कंफ्यूजिंग कैटेगरीज, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? इफ यू वांट टू रन योर कंपनी, सबको अपनी कंपनी चलानी है, बट 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए 365 डेज, तो कितना पैसा लगेगा? वर्किंग कैपिटल. अच्छा, 10 साल की बात नहीं हो रही, अरे 10, 20, 30 की बात नहीं हो रही, 1 साल की बात हो रही. तो 1 साल मेरे को मेरा गाड़ी चलाना है, कंपनी की गाड़ी, तो पैसा कहां से आएगा? करंट एसेट. पैसा कहां पे जाएगा? करंट लाइबिलिटी. दैट इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कहता है करंट एसेट, 1 साल का एसेट, माइनस करंट लाइबिलिटी. ओके, सो how do we know what are current assets? Well, have a look. कैश एंड बैंक में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं. डेटर, क्योंकि ये है तो बहुत डिटेल में. बिल रिसीवेबल, लूज टूल्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, दीज आर ऑल 1 साल का एसेट. डेटर्स मीनिंग कस्टमर्स. यू डोंट गिव योर डेटर्स 2 साल बाद आके पैसा देना. नो, ऐसा नहीं कहते आप. 2 महीना, 30 डेज, 15 दिन, 20 दिन स्टॉक आपके पास. ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट ओल्ड वाइन कि जितना पुराना उतना अच्छा. नहीं. माल को झट बेच देना. तो माल आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 1 महीना, 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, तो ये सब अभी के एसेट है, करंट एसेट. दे विल गिव यू अभी मनी, पैसा आएगा. नॉट अभिमन्यु, अभी मनी, पैसा आएगा.
बट पैसा देना भी तो पड़ेगा आपको, बराबर है। ओके, किसको पैसा देना पड़ेगा? करंट लाइबिलिटी। तो वो कौन है? क्रेडिटर। जब वो आएगा, नॉक नॉक, पैसे दो, लो। आपके लिए क्रेडिटर कौन है? दूध वाला भैया क्रेडिटर है, न्यूज़पेपर वाला अंकल क्रेडिटर है, जो आपके घर पे भाजी देता है, ग्रोसरीज देता है, चना, आटा, दाल, साबुन, ये सब, वो क्या है? क्रेडिटर। यू कैन टेल देम 3 साल बाद आना ना। वो 3 साल बाद? मैडम पैसा अभी मांगता है, ओके, कोविड चल रहा है, सबका तकलीफ है, ऐसा थोड़ी पैसा रोकने का। यू हैव टू पे, 1-2 महीने में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है जो सरकार को आपको टैक्स देना है। यू कैन डिले ना, आप थोड़ी बोल सकते हो बीजेपी गवर्नमेंट रुको रुको, अभी थोड़ा हालत खस्ता है, देवर से नहीं भैया, हम लोग वैक्सीन फ्री का बांट रहे। यस, ट्रू, सच है। अगर सरकार को पूरी देश में वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को फ्री का देना है, पैसा कहाँ से तो आना चाहिए, तो टैक्स से आता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो 1 साल में पैसा कहाँ से आएगा? करंट एसेट। 1 साल में पैसा कहाँ पे खर्चा होगा? करंट लाइबिलिटी। ये आप माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। सो अगेन, वेरी क्विकली, आई विल रिमाइंड यू that your vertical balance sheet has 2 parts. Right above is sources of funds, and the second part is called as application of funds. In sources of funds you get 2 sub parts. उसके फैमिली ट्री में 2 मेंबर है, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। उसको जोड़ोगे तो आंसर आएगा। एंड एप्लीकेशन में 3 मेंबर है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट दूसरा, और तीसरा इज वर्किंग कैपिटल। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड लिस्ट विथ मल्टीपल आइटम्स। इतना बड़ा बैलेंस शीट नहीं आता, द बैलेंस शीट इज स्मॉल। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, कुछ लिखना नहीं है। हाँ, इफ यू विश टू, डेफिनेटली आप इन अ टेक्स्ट बुक ऑल्सो, आप जब खरीदते हो, ओके, ऑफ मनन प्रकाशन, यू कैन बाय इनापुरे टेक्स्ट बुक, उसके अंदर ये ऑब्वियसली डिटेल में दिया गया है। हाँ, लेट मी शो यू बोथ दीज बैलेंस शीट्स साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने अलग अलग पेज पे बताया ना, साइड बाय साइड, सिंपल सिंपल। सो व्हाट यू सी इज अ वर्टिकल, सॉरी, अ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, लेफ्ट liability, right, asset, and different items: capital, cash, building, reserve, debentures, creditor, outstanding, car, machinery, general reserve, bank, furniture. ऐसे करके there are so many items, profit and loss, land. Right now, what is it that I am explaining to you? So bill payable, bill receivable, bank loan, prepaid expenses. So these are different assets and liabilities which you have been dealing with for the past 2-3 years. Right now हम लोग इसका लुक चेंज करेंगे। अच्छा, कैसे? देख भाई, हम लोग ना इसको वर्टिकल बनाएंगे, तो ये वर्टिकल दिखता कैसे है? आ रहा है, इंतजार कर। हाँ, सो वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, उसके आगे कोई भी साल रहेगा। हाँ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 2 कॉलम में 2 पार्ट है। एक पार्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स, दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन। सोर्सेज में 2 और पार्ट आते हैं, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। एप्लीकेशन में 3 पार्ट आते हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। सोर्सेज का आंसर इज टोटल फंड अवेलेबल, और एप्लीकेशन का आंसर इज टोटल फंड एम्प्लॉयड। सो टोटल फंड अवेलेबल एंड टोटल फंड एम्प्लॉयड, they must come one and the same आना अनिवार्य है। नहीं आया तो गलत हो गया ना, सीधी सी बात। ओके, नाउ व्हाट एम आई फर्दर एक्सप्लेनिंग टू यू? या जो ओनर्स फंड्स है, वो ओनर्स फंड्स के अंदर आपको ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस सी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट टू। वर्किंग कैपिटल दिखता है ना, उसके अंदर
करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. यू शुड नो ये करंट एसेट मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी, व्हाट आर द एग्जांपल्स. टुडे ये जो फॉर्मेट आपको दिखता है टॉप टू बॉटम, दिस इज अ वर्टिकल फॉर्मेट. It's a simple form of vertical format. What I shown you prior to this with like 5-6 pages, but उतना लंबा नहीं आता है, ये simple form है. Let me in this simple form on this board behind me show you today. तो पहले देख लो, ओके? जब भी कुछ भी नया सीखोगे तो पहले कर लो. अगर टीचर बोलेगा तो वो गलत है. सर पहले दिखा तो दो, गाड़ी चलाने को बोल रहे हो, चल बैठ जा ड्राइवर सीट पे, चला. अरे सर पता नहीं एक्सेलरेटर कहाँ पे, क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, हैंड ब्रेक क्या होता है, पहले दिखा तो दो. तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअली सॉल्व अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग. सो लेट्स प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि ये बदलाव जो है वो होता कैसे है. ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस बदलाव. अबव मी इज अ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. You can please just read about capital reserve, 12% loan, current liability बोला, ओके. क्रेडिट बिल पेबल, ये सब करंट लाइबिलिटी, बट वो उन्होंने नहीं बताया. एसेट साइड पे ध्यान देना, ऊपर फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट. वेरी सिंपल एंड क्यूट लुकिंग बैलेंस शीट. व्हाट यू हैव टू डू लेटर ऑन व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट lectures, coming up lectures, आपको ये ऊपर का बैलेंस शीट क्वेश्चन पढ़ लो. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन you are required to prepare a vertical balance sheet. See, above is a horizontal balance sheet that you convert to this one. ये vertical है, मैंने पहले से लिख के रखा है. You can't do that when you are solving, क्योंकि आपको नहीं पता शेयर कैपिटल में कितना लाइन, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लाइन, क्योंकि वो लाइंस कभी 6, कभी 4, कभी 10. राइट नाउ आपको सिर्फ देखना है, ओनली देखना, और कुछ नहीं करना है. ओके, सो व्हाट हैज़ बीन रिटन, ये ऊपर से नीचे क्या लिखा गया है. जो कैटेगरीज है, पहला सोर्सेज, फिर एप्लीकेशन. सोर्सेज के अंदर 2 सोर्सेज, शेयर होल्डर्स और बोरोड. एप्लीकेशन के अंदर 3 बहाने, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल. मेरा काम यहाँ पे सिखाना, आपका काम देखना. अच्छा, कैसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कैसे ट्रांसफर करेंगे. देखो, पहले दिया कैपिटल, तो ऊपर है हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल में कहाँ पे जाएगा, एरो देख लो, एरो देख लो. ओके, सो इट विल गो टू शेयर कैपिटल. यस, सुपर, 50,000. चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई. सेकेंड क्या है, रिजर्व्स. अच्छा, तो वो उधर किधर जाएगा, वर्टिकल में, रिजर्व एंड सरप्लस. ग्रेट, चलो वो भी लिख लेते हैं, 15,000. ओके, देन 12% लोन, वो किधर जाएगा, वो उधर ना बोरोड फंड है, बोरोड. ओके, तो बोरोड फंड में लिखा 12% लोन, 30,000. फिर करंट लाइबिलिटी नीचे है, नीचे नीचे नीचे. ओके, वर्किंग कैपिटल के अंदर 30,000. तो ऊपर का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर किया. अच्छा, एसेट किधर जाएगा, फिक्स्ड एसेट. अरे वो तो लिखा है फिक्स्ड एसेट, उठा के डाल दिया एप्लीकेशन में 60,000. फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट, बगल में तो लिखा है इन्वेस्टमेंट, उठा के डाल दिया 10,000. एंड फिर लिखा है करंट एसेट, उठा के डाल दिया. इतना सिंपल नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग, आएगा इस तरह, तब्दीली करके, चेंज करके करना है इस तरह. ओके, 55,000. बस इतना हो गया. अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा ऊपर का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल सेम सेम है ना, 1,25,000 1,25,000. वर्टिकल भी सेम होना चाहिए. कैसे, चलो देखते हैं. वर्टिकल में यू शुड हैव सोर्सेज का वन आंसर. अच्छा, सोर्सेज का आंसर कैसे आएगा, देखो पहले ना ओनर्स फंड्स ढूंढो. ओके, 50 + 15 65,000. यस सर, यू मे आस्क सर वो मिसलेनियस का क्या, वो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक, डोंट वरी, आगे के सम्स में आएगा. तो ओनर्स का आंसर है, बोरोड का आंसर है, ऐड कर. ओके, A + B क्या आया, 95,000. सो सोर्सेस का आंसर मतलब कितना पैसा आया, 95,000. तो 95,000 जाना चाहिए. हाँ, तो वो एप्लीकेशन का आंसर है, देखो ध्यान से. सो फिक्स्ड एसेट इज A, इन्वेस्टमेंट इज B,
and working capital meaning current asset minus current liability, which is 25,000 is C. 2 बहाना सोर्सेस का, 3 बहाना एप्लीकेशन का, दोनों का टोटल ऊपर का और नीचे का मस्ट बी सेम, 95,000 अप 95,000 डाउन. हॉरिजॉन्टल का बैलेंस शीट मैचेस, वर्टिकल बैलेंस शीट ऑल्सो मस्ट मैच बिकॉज यू हैव नॉट डन प्लस एंड माइनस. मतलब आपने ये जो ऊपर दिया था ना हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में कोई चोरी नहीं किया, इसमें से कुछ कम किया अपनी जेब में डाला, नहीं नहीं नहीं, जो था वही लिख दिया. तो अगर वो हॉरिजॉन्टल में मैच करता है तो वर्टिकल में भी तो मैच करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एनालिसिस. ओके, मैं थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ. आपको द फर्स्ट अराउंड मे बी 4 or 5 क्वेश्चंस, तो मेरा 4-5 लेक्चर्स इसी पे बेस्ड होगा. एक्सप्लेन टू यू हाउ डू यू कन्वर्ट अ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट उधर का इनटू अ वर्टिकल बैलेंस शीट, ये जो मेरे पीछे है. ओके, आई होप टुडे यू हैव अ थोड़ा आइडिया. थोड़ा थोड़ा करके देखिए ना, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, थोड़ा थोड़ा करके अपनी गाड़ी आगे जाएगी. बट एटलीस्ट ये फिट हो चुका है आपके दिमाग में कि व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एंड हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू अ वर्टिकल बैलेंस शीट. मेक श्योर दैट यू हैव अ टेक्स्ट बुक मनन प्रकाशन नैनापुरे, तो उसमें से ही क्वेश्चंस हम लोग आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं. ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन इज अंडरस्टूड बाय यू. इफ इट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय यू, क्या करना है, लाइक कर दीजिए लेक्चर वीडियो को. इट डज प्रोवाइड अस द नेसेसरी इंकरेजमेंट. कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स, जूनियर्स, of all your lovely family members. They are the best wealth that you can always have. I will meet you very soon with the continuation of this particular lecture. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Good day to all of you. God bless. Bye.